So, hello everyone, welcome back to Vastudev Group. Today we are going to study trigonometry. So, first of all, what is trigo? Like, trigo is like triangle, okay, a right angle triangle. We just name this triangle as A, B, and C. Okay, here angle B equal to 90 degree. So, there are three parts of a right angle triangle, that is AB equal to perpendicular respectively BC equal to base and AC equal to hypotenuse. Where hypotenuse is the largest side of the right angle triangle. So there's one relation regarding these three, which we also known as Pythagoras theorem. Like what Pythagoras theorem says is, in the short form Pythagoras theorem, it says that hypotenuse square is equal to the base and perpendicular square. That is, we can derive it as perpendicular square sum with base square equal to hypotenuse square. Okay, so this is a relation. You have to memorize this relation between these three. Now, at trigonometry, we further studied about sine, cos, and tan theta. Okay, here with theta respect to angle C. Okay, we take as angle C as theta and angle A also as theta. Now, what is basically sine theta, cos theta, and tan theta? Now, everyone should have noted this. Now, what sine theta? First of all, mark one right angle triangle in your triangle. Like we have taken angle B as a 90 degree. Now, sine theta. Sine theta is perpendicular upon hypotenuse. Yani, we as if mark angle C as a theta, the adjacent side of the theta, that is AB, is perpendicular, and the corresponding side of the theta, that is AC, is hypotenuse. So we can derive it as sine theta equal to perpendicular upon hypotenuse, that is also equal to AB upon AC. Okay, this sine theta, and we have 6 trigonometric ratios, that is sine, cos, tan, cosec, sec, and cot theta. So cosec theta is inverse of sine theta, means that sine theta, or we can write it as or we can also write it as cosec theta. Cosec is 1 by sine theta, that is also equal to hypotenuse upon perpendicular. Okay, now what about cos theta? Cos theta. Now, cos theta is equal to base upon hypotenuse. What's base? The thetas. Now we are having two corresponding sides with respect to theta. One is the base, that is BC, and the other hypotenuse, AC. So, what we will get the relation is that base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse. And sec theta is inverse of cos theta and vice versa. That is, sec theta is equal to 1 by cos theta, or you can also write it as hypotenuse upon base. If you remember, sine theta and cos
cosec theta as its inverse and vice versa, and the cosec and sec, you will it will be easier for you to remember these ratios. Okay, now last is tan theta. Okay, now one relation is tan theta is also equal to sin by cos theta. Okay, now tan theta, now if you write sin theta, the value of sin theta or the relation we have found is like AB by AC. Okay, so AB by AC we can write as AB by AC, and what is cos theta? Base by hypotenuse यानी BC by AC. We can write as whole divided by BC upon AC. अब the denominators goes into numerator, and the denominators goes to the upperwards denominator. Like should I make it easy for you? Like AB upon AC will be equal to AC upon BC. Okay, now AC and AC would be cancelled out and we will get AB by BC. So tan theta, like AB is perpendicular and BC is base. So the equation for the tan theta or the ratio we derived is perpendicular upon base, and the cot theta, that is the inverse of tan theta. You can reverse this equation, that is base by perpendicular. Base by perpendicular. In NCERT, the perpendicular is derived as the adjacent side of the angle theta. यानी कि इसका जो थीटा एंगल C को हमने थीटा माना है, इसका जो एडजेसेंट साइड है उसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. एडजेसेंट साइड को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं थीटा के रिस्पेक्ट्स में, थीटा के रिस्पेक्ट में. और एंगल B के रिस्पेक्ट्स में जो एडजेसेंट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है. ओके, तो ध्यान देना एनसीईआरटी में एडजेसेंट साइड थीटा के रिस्पेक्ट में लिया गया, और जब भी बोले 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में वो हाइपोटेन्यूस होता है, और 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग साइड होता है बेस और परपेंडिकुलर, और थीटा के रिस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग साइड होता है बेस और परपेंडिकुलर. थीटा हम एंगल ए को भी मान सकते हैं, बट इजी वे में हम सी को मान के चल रहे हैं. ओके, सो ये पूरा टी रेशियोज है, इनको आपको रिमेंबर करना है, नोट इट डाउन. Okay, now we move further with the values, and what if we put the angle like अभी हमें बस acute angle होता है. Acute angle में 0 डिग्री to 89 डिग्री. ओके, 90 डिग्री से राइट एंगल ट्रायंगल. लाइक हमें कुछ चुनिंदा एंगल्स के वैल्यूज को रिमेंबर करना है. सो अब अगर हम AB की वैल्यू को 1 रखें और BC की वैल्यू को 1 रखते हैं, तो जो AC की वैल्यू आती है वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू √2 आती है. ये जो AB BC ये आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, लाइक कि सिंपलिसिटी रखने के लिए हमने 1 लिया है. अब मेजर एंगल्स पे थीटा रखने पे उनकी क्या वैल्यू आती है जब एक एंगल उस ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल बना लेते हैं, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. बाकी का मैं बता देता हूँ तो आपको कैसे रिमेंबर करना है. वी राइट इट एज 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 ऑल्सो, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ओके, ये 4 मेजर एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू. नाउ साइन 30 डिग्री इज 1/2. ओके, साइन 45 डिग्री इज 1/√2.
साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1 एंड कॉस थीटा जस्ट ये ऊपर वैल्यूज का रिवर्स है. लाइक अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री भी लिखते हैं, लाइक लेट अस कंक्लूड 0 ऑल्सो हियर. Let us conclude 0 also, like we have to take 0 degree, now 30, 45, 60 and 90 degree. Sin 0 की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 40 1/√2, 60 is √3/2 and sin 90 is 1. Now cos theta is just the reverse of the values that sin theta is having. यानी कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो cos 90 के बराबर होती है, और जो cos 90 की होती है उस जो cos 0 की होती है वो sin 90 के बराबर होती है. यानी कि अब cos थीटा 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा 90 डिग्री. यानी कि यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा 1. 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. cos 30 साइन 60 के बराबर होगा. लाइक हम उल्टा आ रहे हैं, लाइक कि आपने साइन थीटा पहले लिख लिया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और कॉस थीटा में जब लिखना हो तो जस्ट उसके रिवर्स में आ जाओ, यानी 1 √3/2. कॉस थीटा साइन थीटा आर इक्वल एट 45 डिग्री. ये आप रिलेशन याद करिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में काम देगा. बोथ आर इक्वल एट 45 डिग्री और उसकी वैल्यू होती है 1/√2. नोटेड डाउन. यहाँ पे 1/√2, 1/2 एंड 0. नाउ जब मैं टी रेशियोज पढ़ाया जस्ट पीछे में, तो मैंने बोला tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है. सो tan थीटा जब मैं साइन बाई कॉस लिखता हूँ, यानी कि जब मुझे 0 डिग्री का फाइंड करना हो तो साइन 0 और कॉस साइन 0 बाई कॉस 0 कर दूंगा. 0/1 ये एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, तो इट विल बी इक्वल टू 0. ओके, 0 या शायद ना एनसीईआरटी में नॉट डिफाइंड भी लिखा हो. लाइक tan के जो 0 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है. ओके, नाउ tan 30 डिग्री साइन 30 और cos 30 के बराबर होगा. ओके, अब साइन 30 और cos 30 को लियो. लाइक इफ हमने लिया यहाँ पे 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री का मेजर लिया, साइन 30 हमें पता है 1/2 होता है, cos 30 हमें पता है √3/2 होता है. यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा. सो tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3. यानी इफ आपको साइन याद है, इफ आपको साइन की वैल्यूज याद है, आप कॉस का रिवर्स करके लिख सकते हो, और कॉस और साइन दोनों की वैल्यू याद है तो आप tan साइन बाई कॉस इस आइडेंटिटी के थ्रू आप उनकी वैल्यूज लिख सकते हो. नेक्स्ट, अब 1/√2, 1/√2, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, दोनों नंबर सेम है, डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा. √3/2, 1/2, दोनों को डिवाइड करने पे √3 आएगा एंड 90 डिग्री आई गेस नॉट डिफाइंड होगा. लाइक 1/0, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है. अब बचे बाकी के 3 रेशियोज, टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्री, जो बचे कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा. कॉसेक, लाइक स्टार्टिंग में जब टी रेशियोज बताया तो मैंने बोला कॉसेक इज जस्ट द इनवर्स ऑफ साइन, यानी कि कॉसेक 0 और साइन 0, यानी कि कॉसेक होगा 1/sin, यानी साइन थीटा जब 0 रखोगे तो 1/0 आया, यानी कि कॉसेक थीटा हो गया नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड या एनसीईआरटी में आप देख लेना. लाइक जिनकी वैल्यूज आपको मेजरली वैल्यूज याद करनी है, साइन में 0 छोड़ दो, 30, 45, 60, 90, और कॉस में 30, 45, 60, 90. टैन में आपको खाली 30, 45, 60 डिग्री याद करना है, यानी टैन के बाद से जितने भी टी रेशियोज हैं उनमें खाली आपको 30, 45 और 60 की वैल्यूज याद करनी. खाली साइन और कॉस में 90 और
90 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको ना। अब कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, यानी 1/2, यानी कि 1/2 कैसे लिखोगे 1/1/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। 1/√2 यानी कि √2, √3/2 भी रिवर्स हो जाएगा 2/√3 में, और 1 का 1 रहेगा। ओके, 1 को रेसिप्रोकल करोगे, यानी कि कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है। यानी साइन थीटा की वैल्यू याद है आपको तो कोसेक की भी याद हो जाएगी। साइन से हमने कॉस को डिराइव किया था, यानी और सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि ये रेसिप्रोकल होता है। 1/, में कुछ भी नंबर लिखा हो तो उसका रेसिप्रोकल होता है। अब कॉसेक थीटा के सारे वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके हम सेक थीटा के में लिख सकते हैं। ओके, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। अब आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि कॉसेक थीटा जैसे दिया है, हम रिवर्स से आएंगे तो सेक थीटा की वैल्यूज हमें मिल रही है। ओके, यानी 1 मिला 1, 2/√3 कौन, ये 1/√2 का √2 हो जाएगा, एंड देन 1/2 का 2, एंड अगेन नॉट डिफाइंड। डन। कॉट थीटा इज जस्ट द इनवर्स ऑफ टैन थीटा, यानी कि आप टैन थीटा का रेसिप्रोकल्स करोगे तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी। सो कॉट थीटा की मेजर्स आपको याद करनी 30, 45, 60। कॉट का उतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं रहता, सो वी कैन राइट इट एज √3, 1/√3। ओके, सो ये टी रेशियोज, इनके जो मेजर एंगल्स हैं उनके रिस्पेक्टिव में इनकी वैल्यूज़ है वो आपको नोट डाउन करना है, यानी कि याद भी करना है। नाउ इतना होने के बाद अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे हम आएंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा भी नहीं है, लाइक ओके। सो मेजर एंगल्स के आपने वैल्यूज़ हो गया, नोट डाउन कर लिए। नाउ कुछ आइडेंटिटीज़ है। पहली जो आइडेंटिटी होती है जनरली आपको अलजेब्रिक में काम देता है। फर्स्ट हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, वाइस वर्सा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। और ये जो दोनों वैल्यूज रहेंगे 90 में से थीटा माइनस करने के बाद जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा एक्यूट होगी और दोनों पॉजिटिव आएंगे। यानी कि अगर आपने क्वाड्रेंट्स पढ़ा हो, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड इट्स फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये 0 डिग्री से 90 डिग्री हो गया, 90 से 180 हो गया, 180 से 270 एंड हियर अगेन 360 डिग्री पे आके रुकता है। सो कॉस में से, यानी कि कॉस के 90 डिग्री में से अगर कोई भी थीटा की वैल्यू लेते हैं, लाइक एग्जांपल 10, 20, 30, तो वो हमेशा हमें एक्यूट एंगल देगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टी रेशियोज रहेंगे सब की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके, इतना बस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का याद रखिए, सेकंड का कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस वुड बी पॉजिटिव एंड द थीटा विथ रिस्पेक्ट टू दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी 90 डिग्री से बाला नहीं होगा और थीटा हमेशा स्मॉलर देन 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल। नाउ द सेकेंड इज साइन। अब कॉट और टैन का रिलेशन होता है। कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा टैन थीटा, वाइस वर्सा टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सेम विथ सेक एंड कॉसेक का रिलेशन होता है। लाइक सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक के बराबर कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है।
तो ये जो रिलेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा विल बी ऑलवेज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 89 डिग्री के बीच में होता है। और 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उसके बाद ऑब्ट्यूस आता है। ओके, सो ये आपको रिमेंबर करने हैं। इसके बाद एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 3 आती हैं। तीन जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, पहला है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, एंड तीसरा है 1 प्लस कोसेक माइनस सेक, कोसेक माइनस कौन सा बचा यार? टैन एंड कॉट। ओके, तीन आइडेंटिटीज। पहले का डेरिवेशन मैं करा देता हूँ, लाइक कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है। एंड इनसे जो डिराइव्स होते हैं, इनसे जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो होता है लाइक अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माने, अगर आपको खाली साइन थीटा की वैल्यू चाहिए होती है वो होगा कॉस को उधर भेज देंगे, प्लस का माइनस बन जाएगा, और स्क्वायर को इक्वल टू के अपोजिट साइड भेजते हैं तो रूट हो जाता है। यानी कि अगर आपको खाली नॉर्मल साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो। यानी आप इन सब का भी डेरिवेशन यूज़ करते हैं। एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। आप इसको नॉर्मलाइज करके ऐसे लिख सकते हो लाइक कि आप टैन को उधर भेज दो, वेट अ सेकेंड, यानी 1 को आप इक्वल टू उसके उस साइड रखो और सारी आइडेंटिटी एक साइड रखो। नाउ अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आया उसका अगर डेरिवेशन करता हूँ तो एक बेसिक प्रिंसिपल जो राइट एंगल ट्राइंगल का होता है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टार्टिंग में बता चुका हूँ क्या है कि सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। यानी कि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी को माना है, बेस बी सी को और ए सी को हाइपोटेन्यूस। सो ए बी स्क्वायर प्लस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस बी सी स्क्वायर is equal to the hypotenuse square that we have assumed as AC. Okay, so dividing like we take it as equation number 1. Dividing the whole equation by AC, we will get AB square dividing the whole equation by AC square plus BC square upon AC square should be equal to AC square upon AC square. And I have divided the equation 1 by AC square. Now AC by AC will cancel out and give us 1, and the squares will be sum up here like AB AC's whole square, BC AC's whole square. That is AB by AC's whole square plus BC by AC's whole square will be equal to 1. Now in starting I have told that the sin theta is equal to the perpendicular and hypotenuse. Now perpendicular is AB and hypotenuse is AC. So what we'll get is AB and AC is equal to sin theta. So sin theta whole square same as BC by AC is base by hypotenuse. So we'll get cos theta also we can write as sin square theta plus cos square theta equal to 1, hence proof. So ये आपका एक डेरिवेशन हो गया इसका, एंड इसी से रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड आप दिस एंड दिस को भी डेराइव कर सकते हैं. सो दिस इज द होल सम अप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. क्लास 10th के NCERTs में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है.
एंड लाइक आपने कंसेप्ट पढ़ लिया बट उसका एप्लीकेशन आना बहुत ज़रूरी है. सो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू.